everyone. How are you all? Hope all of you are fine. Same here. I hope all of you are watching the videos, lecture and enjoying the same. We are getting nice responses from all of you. All of you are understanding the lessons very nicely. ऐसे ही मन लगा के पढ़ाई करते रहो और हॉलीडेज एंजॉय करते रहो. I, Shama Khan, is going to teach you lesson number 3, collective nouns from your ACE Grammar of Standard 4th. अब 4th का ACE Grammar स्टार्ट करने से पहले, चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले, फर्स्ट we'll revise chapter number 1. What was chapter number 1? Yes, it was nouns. So tell me students, what is noun? Yes, the nouns are the name of people, places, animal or things. What are nouns? Nouns are the name of people, places, animals or things. So they are called nouns. In the second chapter, we have studied about common noun and proper noun. So can you tell me what is a common noun? Arey wah! All the students are giving nice responses. Yes, your answer is correct. Common nouns are the name of people, places, animal or things of the same kind. Again, I will repeat. What are common nouns? Common nouns are the name of people, animal, places or thing of the same kind. So many can be there: cup, horses, pencil, parrot of the same kind. Then it was what is proper nouns. So what are proper nouns? Yes students, very good. तो we can tell proper noun किसे कहेंगे हम? तो we can give the answer like this. Okay, proper noun are the name of the specific particular person. Mahatma Gandhi, it is the name of a particular person. So name of any particular person, place, animal or thing, it is called a proper noun. So these all are proper nouns. Again we will revise. What are proper nouns? So proper nouns are the special name of people, animal, places or things. Clear students? All of you have completed all your work in your textbook of lesson number 1 and lesson number 2? Yes. So first we know that nouns are of many kinds. So today we are going to study the 3rd chapter, that is collective nouns. What we are going to study today? Today we are going to study collective noun from your ACE Grammar. So before we start, what is a collective noun? We should know, okay, what are collective nouns? Yes, think students. Chalo, I will give you a hint. It is the name given to a collection of similar things. बहुत सारी एक जैसी चीज़ें के कलेक्शन को हम collective noun कहते हैं. So, what will be the definition of collective nouns? Yes, it will go like this. Collective nouns refer to the name of person, places, animal or thing as a group or as a unit or as one. तो collective noun क्या हुआ? Collective noun refers to the name of person, places or things. Yes, or things as a group, as one unit. We are saying, let's see some example. We can say like this, a bunch of grapes. So here so many keys are there.
but we'll count as one. So, bunch of grapes. Then we can say herd of animals, flock of sheep. So, all these are collective nouns. Now, again, we'll read the examples and try to understand better. So, here, let's read the sentences. First one. A group of people were standing at the bus stop. So, here, see, so many people are there, but we are counting them as one. So, a group, that is collection of people. इतने सारे लोगों को हम एक ग्रुप में काउंट करते हैं. So, a group is a collective noun. Bobby got a bunch of keys to open the door. Bobby को क्या मिला? Yes, he got the bunch of keys. उसे इतने सारे पूरे एक गुच्छा मिला. So, Bobby has got a bunch of keys. So, a bunch of keys is a collective noun. A band of musicians played at the hotel. Means इतने सारे म्यूजिशियन एक साथ उन्होंने होटल में गाना बजाना किया. So, a band of musicians means so many people are included in that one. So, it is a band of musicians. It is a collective noun. यानी बहुत सारे चीज़ों को ग्रुप को जब हम एक साथ एक काउंट करते हैं तो इट इज़ कॉल्ड ए कलेक्टिव नाउन. लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स बाय रीडिंग द सेंटेंसेस विच इज़ गिवन बिलो. सो अब हम क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन्स क्या है? द वर्ड्स आर रिटन इन बोल्ड आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स. तो बोल्ड में क्या क्या लिखे थे? ग्रुप, बंच, बैंड. यस. तो अगेन विल रिवाइज. कलेक्टिव नाउन किसे कहा जाएगा? ए कलेक्टिव नाउन is the name we give to a group of people, animal or thing. यानी बहुत सारे लोगों, एनिमल्स या थिंग के ग्रुप को हम क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन. स्टूडेंट्स रिपीट आफ्टर मी. यस. ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम we give to a group of people, animal or things. Clear? Very good. Now let's see some more example. Grandfather has an album of rare stamps. तो यहाँ बहुत सारे ग्रैंडफादर के पास स्टैम्प्स है. तो सारे बहुत एक साथ जब हम इकट्ठा करते हैं इट बिकम्स एन एल्बम. तो इतने सारे स्टैम्प्स के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? एल्बम. What it is called? So album is a collective noun. A troop of monkeys chattered on the tree. Means monkey जो आवाज़ करता है उसे हम chattered कहते हैं. और बहुत सारे monkey को ग्रुप को क्या कहा जाता है? troop. So a troop of monkeys chattered on the tree. So here troop, that is a collective noun. A choir of singers sang carols at Christmas. जो क्रिश्चियंस लोग होते हैं वो चर्च में जाके गीत गाते हैं जिसे कैरोल्स कहा जाता है. तो कैरोल्स कौन गा रहे थे? अ क्वायर ऑफ सिंगर्स. बहुत सारे सिंगर्स इकट्ठा मिलके. सो दैट फुल वन ग्रुप इट इज कॉल्ड क्वायर. सो एल्बम, ट्रूप, क्वायर, ऑल दिस आर कलेक्टिव नाउन्स बिकॉज दे आर टेकिंग ऑल द पीपल इन वन ग्रुप और हम उसे एक वन काउंट करते हैं. सो ऑल दिस आर एग्जाम्पल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन्स. क्लियर? यस. एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं. डेविड इज टीचिंग अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स अबाउट एंशियंट हिस्ट्री. तो एक क्लास ऑफ स्टूडेंट्स क्या हुआ? यस, कलेक्टिव नाउन. वन मोर सेंटेंस विल सी. हैव अ लुक एट दैट अट्रैक्टिव कैच ऑफ फिश. तो कैच ऑफ फिश वो क्या है? कलेक्टिव नाउन. एक्सीलेंट स्टूडेंट्स. वेरी गुड. Now, here, so many examples are given. Here is a list of common collective nouns. सब अलग अलग में क्लासीफाई कर दिया गया है कि people के ग्रुप को क्या कहा जाता है. So that we'll see one by one. Here, the group of people is there. First one, a crowd of people. So many people when they are together.
तो ये कहाँ पे इकट्ठा हो सकते हैं? आइदर दे कैन बी इन द मार्केट, सिनेमा हॉल, स्काई मॉल, मीन्स ऑल टाइप ऑफ मॉल्स. सो देयर द पीपल आर गैदरिंग. सो व्हेन सो मेनी पीपल आर टुगेदर, उसे कहते हैं अ क्राउड ऑफ पीपल. तो वेयर सो मेनी पीपल एक साथ खड़े होते हैं, इकट्ठे होते हैं, दे आर कॉल्ड ए क्राउड ऑफ पीपल. सेकेंड वन, ए सर्कल और पार्टी ऑफ फ्रेंड्स. जब अपने आप बर्थडे पार्टी पे बहुत सारे फ्रेंड्स को इकट्ठा करते हैं, सो वी कैन से अ सर्कल और ए पार्टी ऑफ फ्रेंड्स. तो फ्रेंड्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है? यस, ए पार्टी ऑफ फ्रेंड्स. नेक्स्ट वन इज देयर एन आर्मी और ट्रूप ऑफ सोल्जर्स. ज़्यादा तो हम आर्मी ही यूज़ करते हैं सोल्जर्स के लिए. सो इट विल गो लाइक दिस, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स. जब बहुत सारे सोल्जर्स एक साथ इकट्ठा होते हैं, दे आर कॉल्ड एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स. ये सारे आपको लर्न करने पड़ेंगे ऑन द डेली बेसिस. आप थोड़े थोड़े लर्न कर लीजिए, सो इट विल बी बेटर. ए caravan ऑफ gypsies मीन्स व्हेन सो मेनी पीपल, वो पीपल को क्या कहते हैं? वो एक जगह बसते नहीं है, वन प्लेस टू अनदर, वो हमेशा घूमते रहते हैं, है ना. तो दिस काइंड ऑफ पीपल आर कॉल्ड अ caravan ऑफ gypsies. दिस इज फॉर यू. क्लियर? करेक्ट? नो? यस. ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स को हम प्यूपिल्स भी कह सकते हैं. सो ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स. व्हेन सो मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, हम इसे क्या कहेंगे? ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स. ये है कलेक्टिव नाउन, क्योंकि हम क्लास में इतने सारे बच्चे एक साथ बैठते हैं. सो ऑल दिस फुल ग्रुप इज कॉल्ड ए क्लास ऑफ पीपल्स और स्टूडेंट्स. लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल. ए क्रू ऑफ सोल्जर्स. जब हम शिप पे बैठते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे उस पर काम करने वाले लोग होते हैं. दे आर कॉल्ड सेलर्स. तो वो सारे सेलर्स को क्या कहा जाता है? इतने सारे लोगों को ए क्रू ऑफ सोल्जर्स. तो शिप पे सारे काम करने वाले लोगों का कहा जाता है क्रू. तो ए क्रू ऑफ सेलर्स. नेक्स्ट वन, ए लाइन ऑफ किंग और रूलर्स. ये पुराने ज़माने में होता था, जब बहुत सारे राजा महाराजा एक साथ इकट्ठे होते थे, तो दे आर कॉल्ड ए लाइन ऑफ किंग्स और रूलर्स. हम उसको किंग्स भी कह सकते हैं या रूलर्स भी कह सकते हैं. रूलर्स यानी जो राज करता है वो. सो द ग्रुप ऑफ किंग्स और रूलर, इट इज कॉल्ड ए लाइन ऑफ किंग्स और रूलर्स. नेक्स्ट वन, ए पेट्रोल ऑफ पुलिसमैन. व्हेन, अब ये वर्ड तो आपके लिए कॉमन हो गया होगा ड्यूरिंग कोविड-19, क्योंकि न्यूज़ चैनल पे इस पूरे दिन ये आता ही रहता है कि जो हमारे कर्मवीर है वो कितनी सेवा कर रहे हैं, हमारे पुलिसमैन कर रहे हैं ना. यस. तो जब वो एक साथ पेट्रोलिंग के लिए निकलते हैं, राउंड पे निकलते हैं इकट्ठा होके, दे आर कॉल्ड अ पेट्रोल ऑफ पुलिसमैन, ताकि हम अपने घर पे सेफ रह सके. यस. सो व्हेन दिस पुलिसमैन कम टुगेदर, दे आर कॉल्ड अ ग्रुप ऑफ पुलिसमैन आर कॉल्ड अ पेट्रोल ऑफ पुलिसमैन. नेक्स्ट वन, ये तो सबको आता ही है. यस, अ टीम ऑफ प्लेयर्स. जब आप कोई गेम खेलते हैं तो वी मेक अ टीम. तो बहुत सारे प्लेयर्स के ग्रुप को कहा जाता है अ टीम ऑफ प्लेयर्स. नेक्स्ट वन, ए पैक ऑफ थीव्स. जब बहुत सारे चोर इकट्ठा होते हैं, दे आर कॉल्ड ए पैक ऑफ थिंग्स. चोरी करनी अच्छी बात नहीं है, बट जब बहुत सारे चोर इकट्ठा होते हैं, दे आर कॉल्ड अ पैक ऑफ थीव्स. ये सब कलेक्टिव नाउन्स है किसके? पीपल के. नाउ वी विल सी सम मोर एग्जाम्पल्स. ए कंपनी ऑफ एक्टर्स. ये तो हम ज़्यादा एक्टर्स के लिए यूज़ करते हैं. सोल्जर्स के लिए हम आर्मी यूज़ करते हैं, मगर सोल्जर्स कैन ऑल्सो कम इन कंपनी. सो अ कंपनी ऑफ एक्टर्स. एक्टर्स मीन्स दोज हु act in the film or in the serials. Salman Khan, Shahrukh Khan, all this group of actors, they are called a company of actors. तो company हुआ उनका collective noun.
A body of men. So when so many men are together, it is called a body of men. Next one, a band of musicians or robbers. जब बहुत सारे गाना बजाने वाले, म्यूजिक बजाने वाले लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, दे आर कॉल्ड अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस. और जो डाकू होते हैं उनको भी हम कैसे इस ग्रुप में ले सकते हैं, उसको भी बैंड कहा जाता है. तो इट विल कम लाइक दिस, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन. या ऐसे भी कह सकते हैं अ बैंड ऑफ रॉबरर्स. दैट ऑल्सो इज करेक्ट. अब जब बहुत सारे टीचर्स एक साथ होते हैं तो हम क्या कहते हैं? ए स्टाफ ऑफ टीचर्स. आप टीचर को स्टाफ रूम में बुलाने चाहते हो ना? यस. तो वहाँ पे बहुत सारे टीचर इकट्ठा होते हैं. तो टीचर्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है? यस, ए स्टाफ ऑफ टीचर्स. तो ऑल दिस कलेक्टिव नाउन्स, ये आपको डेली बेसिस पे थोड़े थोड़े लर्न करने हैं और रिवाइज करते रहने हैं. नाउ नेक्स्ट विल कम टू द ग्रुप ऑफ एनिमल्स. ये तो हमने सिखाया पीपल के ग्रुप के बारे में. नाउ यू विल नो अबाउट द ग्रुप ऑफ एनिमल्स. अब एनिमल्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है? वन बाय वन विल सी. ए कॉलोनी ऑफ एंट्स. हम उसको नेस्ट भी कह सकते हैं, मगर ज़्यादा क्या यूज़ होता है? कॉलोनी. तो जो बहुत सारे एंट्स, अगर हम कोई मिठाई चीज़ या चीनी ज़मीन पे डाल देंगे तो क्या इकट्ठा हो जाएगी? यस, ए कॉलोनी ऑफ एंट्स. देन ए कैच ऑफ फिश. जब बहुत सारे फिश इकट्ठा होते हैं, जब हम फिशिंग करते हैं या जो फिशरमैन फिश पकड़ते हैं तो क्या इकट्ठा हो जाती है? ए कैच ऑफ फिश. व्हेन सो मैनी फिश आर टुगेदर, इट इज कॉल्ड अ कैच ऑफ फिश. ए ब्रूड ऑफ चिकन्स. वो मुर्गी के बच्चे, छोटे छोटे चूजे, कितने अच्छे लगते हैं, येलो कलर के, देखे हैं ना आपने? यस. तो वो छोटे छोटे चूजे बच्चे हैन के, उसे कहा जाता है अ ब्रूड ऑफ चिकन्स. येलो कलर के होते हैं. यस. तो द ग्रुप ऑफ चिकन्स, इट इज कॉल्ड ब्रूड. नेक्स्ट वन, ए फ्लाइट ऑफ स्वॉलोज और डव्स. ये बर्ड्स के नाम है. तो जब एक साथ उड़ते हैं तो उसे बहुत सारे, आपने शाम में देखा होगा या सुबह में देखा होगा कि सारे बर्ड्स एक लाइन में इकट्ठा होके उड़ते हैं. देखा है ना आपने? यस. तो उस एक साथ उड़ान भरते, तो उस पूरे ग्रुप को क्या कहा जाता है? ए फ्लाइट ऑफ स्वॉलोज और डव्स. वो किसी के भी ग्रुप का हो सकता है. तो ये सारे जो डव्स एक साथ उड़ते हैं तो उसे कहते हैं अ फ्लाइट ऑफ डव्स. अ फ्लॉक में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं. अ फ्लॉक ऑफ शिप भी कह सकते हैं, अ फ्लॉक ऑफ गीस भी कह सकते हैं, या ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स भी कह सकते हैं. तो ये शिप के ग्रुप को फ्लॉक कहा जाता है, बतख उसके ग्रुप को गीस कहा जाता है, एंड बर्ड्स उसके ग्रुप को भी फ्लॉक कहते हैं. सो फ्लॉक ऑफ sheep, geese and birds, all things are possible. और हर्ड भी हम बहुत सारी चीज़ें के लिए यूज़ कर सकते हैं. ए हर्ड ऑफ कैटल, डियर, गोट्स. यानी बहुत सारे एनिमल्स, उसमें काऊ, बफेलो, एलिफेंट, वो सब भी आगे, ये सारे एनिमल्स इकट्ठा होते हैं तो हम उसको कैटल कह सकते हैं. या सिर्फ डियर का ग्रुप को, उसको भी हम हर्ड कह सकते हैं. या गोट्स, उसके ग्रुप को भी हम हर्ड कह सकते हैं. सो द ग्रुप ऑफ कैटल, इट इज़ कॉल्ड हर्ड. अ ग्रुप ऑफ डियर, इट इज़ कॉल्ड ए हर्ड. एंड अ ग्रुप ऑफ गोट्स, दैट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड अ हर्ड. ये सारे एनिमल्स के ग्रुप है. नाउ विल मूव नेक्स्ट वन, अ किंडल और लिटल ऑफ किटन्स. किटन्स यानी क्या हुआ? यस, कैट के छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे. सो विल से अ किंडल और अ लिटर ऑफ किटन्स. दोनों का हम यूज़ कर सकते हैं, या किंडल बोल सकते हैं या लिटर. यानी कैट्स के छोटे छोटे किटन्स के बच्चों को विल से अ ग्रुप ऑफ किटन्स, इट इज़ कॉल्ड अ लिटर ऑफ किटन्स. अ पैक ऑफ हाउंड्स और वुल्स. वुल्स, आप जो रात में हाउलिंग करते हैं, दे आर कॉल्ड वुल्स. तो वो सारे जब इकट्ठा होते हैं, और वुल्स का क्या स्पेशलिटी है कि वो हमेशा एक साथ इकट्ठे ही होते, वो अकेले कभी नहीं दिखते. सो
the pack of hounds or wolves, it is called a pack. Correct? Yes. Next one is there, a shoal of fish. जब समुद्र में या नदी में बहुत सारी फिश इकट्ठा होती है, they are called a shoal of fish. Collection of so many fish, it is called a shoal of fish. अब हमने सीखा था a team of player, तो ये एनिमल में यूज भी हो सकता है. a team of horses, जब बहुत सारे हॉर्सेस टेबल में रखे जाते हैं तो हम उसको टीम भी कह सकते हैं. सो अ टीम ऑफ हॉर्सेस, बहुत सारे हॉर्सेस को ग्रुप को वी कैन से टीम ऑल्सो. ए प्राइड ऑफ लायंस, जब बहुत सारे जंगल में लायन इकट्ठा होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? प्राइड. ए प्राइड ऑफ लायंस. नाउ दिस यू आर सिमिलर विथ ए हाइव ऑफ बीस. किसी को मधुमक्खी ने डंक मारा है? यस, बहुत सारे को. सो जब मधुमक्खी के जो गुच्छे होते हैं उसको क्या कहते हैं? अ हाइव ऑफ बीस, फ्रॉम विच द हनी इज कलेक्टेड. सो द collection of bees, it is called a hive. Next one is there, a tribe of goats. तो goats के हमने पहले भी देखा कि herd of goats भी कह सकते हैं या tribe of goats. That also is possible. कलेक्टिव नाउन में दो वर्ड यूज हो सकता है, या तो हम कह सकते हैं herd of goats या a tribe of goats. वो उसके कलेक्शन को ही कहा जाता है. नेक्स्ट वन इज देयर, ए नेस्ट ऑफ माइस एंड रैबिट्स. जब बहुत सारे चूहे इकट्ठे होते हैं उसको हम नेस्ट कहते हैं, या सो मेनी रैबिट्स आर टुगेदर, तो हम कह सकते हैं अ नेस्ट ऑफ माइस और रैबिट्स. दोनों के लिए सेम यूज़ होगा, ए नेस्ट ऑफ माइस, या ऐसे भी हो सकता है अ नेस्ट ऑफ रैबिट्स. सो दीज ऑल आर कलेक्टिव नाउन्स रिलेटेड टू animals. Next one we'll see collective nouns related to things. अब चीज़ों से रिलेट हुए collective nouns, ये तो सबको पता है. फर्स्ट वन, अ बुके ऑफ फ्लावर्स. जब हम किसी का बर्थडे होता है तो हम गिफ्ट करते हैं, क्या करते हैं? अ बुके ऑफ फ्लावर्स, अच्छा सा गुच्छा बनाते हैं और फ्लावर गिफ्ट करते हैं. इट इज़ कॉल्ड अ बुके ऑफ फ्लावर्स. नेक्स्ट वन, अ बंच ऑफ ग्रेप्स और कीस. उसमें इतने सारे ग्रेप्स और कीस में भी बहुत सारी कीस होती है, तो सारे ग्रुप को हम क्या कहते हैं? अ बंच ऑफ ग्रेप्स या ए बंच ऑफ कीस. नेक्स्ट, अ फ्लीट ऑफ शिप्स. बहुत सारी शिप्स होती है तो सारे ग्रुप को क्या कहा जाता है? अ फ्लीट ऑफ शिप्स. वेरी नाइस स्टूडेंट्स, आप सब मेरे साथ रिपीट कर रहे हैं. वेरी गुड. तो अभी आपको ये सब लर्न हो जाएगा, उसके लिए स्पेशल टाइम निकालना ही नहीं पड़ेगा. एन एल्बम ऑफ फोटोग्राफ्स. यस, हम अपना सारे जो अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स होते हैं बचपन के, बर्थडे के, सब हम एल्बम में रखते हैं. तो सारे फोटोग्राफ्स को क्या कहा जाता है? उसकी पूरी एक हम बनाते हैं एल्बम. सो इट इज़ कॉल्ड एन एल्बम ऑफ फोटोग्राफ्स. नेक्स्ट वन, ए बास्केट कैरेट ऑफ फ्रूट्स. यस, तो घर पे हम बास्केट यूज़ करते हैं और यार्ड में और वहाँ पे क्या यूज़ होता है? कैरेट ऑफ फ्रूट्स. तो बोथ आर कलेक्टिव नाउन्स. अ बास्केट ऑफ फ्रूट वी कैन से, या हम कह सकते हैं अ कैरेट ऑफ फ्रूट्स. बोथ इज करेक्ट. नेक्स्ट वन, अ बैच ऑफ ब्रेड. जब बहुत सारे ब्रेड इकट्ठे होते हैं, इट इज़ कॉल्ड अ बैच ऑफ ब्रेड. ए बंडल ऑफ हे और रैक्स. जब बहुत सारी बोरियां इकट्ठी हो जाती है तो वी कैन से अ बंडल ऑफ हे, अ बंडल ऑफ रैक्स. अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. यस, तो जब बहुत सारे आइलैंड्स एक साथ इकट्ठे होते हैं तो इट इज़ कॉल्ड अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. वी विल सी सम फ्यू मोर एग्जाम्पल्स. ए ग्रूव ऑफ ट्रीज. यस, ऑर्चर्ड में आपने देखा होगा कि इतने सारे ट्रीज होते हैं, तो सारे ट्रीज को एक साथ हम क्या कह सकते हैं?
अ ग्रूव ऑफ ट्रीज, ऑर्चर्ड में स्पेशली देखने को मिलता है। तो ए ग्रूव ऑफ ट्रीज मीन्स ग्रुप ऑफ सो मेनी ट्रीज। ए हीप ऑफ स्टोन्स, जब बहुत सारे पत्थर ऐसे इकट्ठे पड़े रहते हैं तो वी कैन से अ हीप ऑफ स्टोन्स। व्हाट विल से? गुड, अ हीप ऑफ स्टोन्स। नेक्स्ट, अ पेयर ऑफ शूज़, ये तो आपका रोज का रूटीन है, जब आप स्कूल पहन के जाते हो तो 2 पेयर, उसको क्या कहते हैं? अ पेयर ऑफ शूज़। देन अ रेंज ऑफ हिल्स, जब छोटे छोटे ऐसे पहाड़ टीले जैसे होते हैं उसको एक साथ क्या कहते हैं हम? अ रेंज ऑफ हिल्स, या हम रेंज ऑफ माउंटेन्स भी कह सकते हैं, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, रेंज ऑफ हिल्स और रेंज ऑफ माउंटेन्स। अ रो ऑफ हाउसेस, हम जब कॉलोनी में रहते हैं तो क्या होता है, सब एक घर एक जैसे बनते हैं, तो बहुत सारे घर जो एक जैसे होते हैं उसे क्या कहा जाता है? अ रो ऑफ हाउसेस। तो हाउसेस के ग्रुप को क्या कहते हैं? अ रो ऑफ हाउसेस। नेक्स्ट वन, ए स्टैक ऑफ वुड्स, व्हाट इज कॉल्ड? जब जंगल में बहुत सारे so many jungles are together, we'll say a stack of woods. And next one is there a string of beads, जब हम डोरी में मोती पिरोते हैं तो it is called string, a string of beads. So all these are collective nouns related to person, people, animal and things. So all these collective nouns on the daily basis you have to learn and keep in mind, which will be helpful to you for understanding better. इसलिए on the daily basis आप इसको रोज रिवाइज करिए, इसको लर्न करते रहिए। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, व्हाट इज अ कलेक्टिव नाउन? बच्चे बता सकते हैं व्हाट इज अ कलेक्टिव नाउन? यस, ऑल द स्टूडेंट्स आर वेरी स्मार्ट, सबको पता है क्या है कलेक्टिव नाउन? यस, अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम गिवन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल एंड थिंग्स। गुड स्टूडेंट्स, वेल डन। Now let's see the animated video so that you can understand the chapter better. Let's learn about collective nouns. It is a hot summer day. Thud, Balu and Jojo decide to go and meet Hop. They want to have a bath in her pond to cool down. As they reach near a grassy field, they hear a chomp-chomp noise. It is a herd of buffaloes eating grass. Jojo laughs and he looks up, sees birds flying in a V shape. It is a flock of geese. As they go further, they find a litter of newborn puppies. There are 5 of them. Oh, the sights they see! Balu almost steps on a colony of ants. Thud points to the pond in the distance. There is a school of fish swimming in the pond. Thud, Balu and Jojo dive into the cool water. They tell Hop about all the things they saw on their journey. A herd of buffaloes, a flock of geese, the litter of puppies, colony of ants, a school of fish.
Do you notice anything in common about the words herd, flock, litter, colony, and school? All these words refer to a group of things. They talk about lots of things taken as one. For example, a herd of buffaloes is a lot of buffaloes that are talked of together as one whole or one group. A flock of geese. It is the same with a litter of puppies and a colony of ants. These words are names of a group or a collection of things taken together, and they are called collective nouns. Let us look at some more collective nouns that are names of people, places, animals, or things taken as a whole. A crowd of people, a pride of lions, a bunch of grapes, and a bouquet of flowers. Do you know what the collective noun for a group of friends is? A party of friends. And that's what we are.